जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, वॉल्यूम इंटीग्रल के थोड़े क्वेश्चन क्या बोल सर आप? लिख लीजिए। लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल के थोड़े क्वेश्चंस कर लिए तो ये यूनिट खत्म हो जाता। यस सर। सर स्टोक्स थ्योरम के पर आप एक ही प्रॉब्लम कराए थे। बस है कि बस है। एक ही बस है। आपके पास है ना नोट्स, आप निकाल के थोड़े करो। ओके सर। नहीं है नोट्स आप पर है ना, चार सबके नोट्स आप पर। यस सर। ठीक है चलो करेंगे, आप कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन तो करो। लिखिए आप। क्वेश्चन 3xy I cap minus y square j cap. Evaluate integral over C f dot dr where C is the curve. Y is equals to 2x square in xy plane from 0 comma 0 to 1 comma 1. Very important thing is you should see what is this y is equals to 2x square. ये कर्व कैसा रहा, इसके लिए मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके बता दूं ग्राफ पेपर में। बता दें कोऑर्डिनेट एक्सिस you have to draw लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल करे तो हो गया सर। वॉल्यूम इंटीग्रल पे रहता था। क्या बोले सर आप? वॉल्यूम। ओके। ग्राफ फिगर बनाया हमें, ठीक है। y is equals to x square will be the name of this curve. Y is equals to 2x square. Here you know this point is what? 0, comma. Is it possible? यस सर। And maybe here 1 comma 1 is the point. So this line only we have to find out. This part only. Okay. This one I'll present like this. Only this area. This up to here only. This is the line integral. Curve यहाँ से लेके यहाँ तक curve है. 0,0 से लेके 1,1 तक. अब इसका solution कैसा रहेगा? Solution. First of all, what here is given here. Tell me. F value. Tell me. Come on. y I कैप माइनस y स्क्वायर j कैप xy 3xy I cap minus माइनस j y कैप। square j cap y square j cap. And what is dr value? What is dr dr value? dr value क्या है बोलिए? You should remember that dr value 3x 3 times r of r value is xi कैप plus प्लस yj yj plus zk is also there, but in our question we don't have that k term, so here also I am not writing that term. Okay, now we have to find out this value. Which one? Integral over c f dot dr value. Over c f dot dr value, which is equals to integral over c. F is what?
3x y cap minus y square squared j cap dot Okay. product with into xi cap dxi cap plus y dy cap. so this is Yes, equals sir. to integral over c. Integral over c. We know that I dot I is 1. So what's left off here? 3 3 y I dy left off. Not dy, it's a dx now. It's dx, not sir dy. dy. dy मतलब dy पर है, dx मतलब dx पर है. So dx 3xy dx minus j dot j is 1, so y square Y square Now here dy. two things are there. What are the two things? We don't know the limits. First of all, you should write the limits. And here after that one, we have y is equals to 2x square is a curve. We can use it this also. Okay. So here we are given condition is y is equals to Y 2x 2x square. When we differentiate this value, dy is equals to what is that? Differentiation of 2x square is 4x 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 into dx. And the limits are, what are the limits of x? Limits of x is x, what are the limits? equal X is equal to 0 to x is equals equals to to 0 equals to 1. 1. So in this question, I am writing the answer. Integral x is equal to 0 to 1. Okay, 3x 3x as it is. Y value also we are converting, that is we are writing as 2x square. And then plus dx as it is minus y 2x square. Y square means if we make it a square, y what will happen? Tell me. 4 power 4 4 over 4 4 into dy power 4 value is 4x into dx. Overall, yes this sir we can take dx common. yes This is equal to 0 to 1. I should write this side, huh? The link down. Again, I think right. Here I am writing integral x is equal to 0 to 1. Simplify 3 to the 6x cube. सर लाइन इंटीग्रल का है बोल के कैसा मालूम होता सर क्वेश्चन दिया था सर ये किसकी वैल्यू है? इसका मतलब आप लास्ट क्लास में कितने पढ़े? एफ डॉट डी आर का मतलब क्या है? इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर का क्या मतलब है? लास्ट क्लास में डेफिनेशन नहीं लिखा है. हम लोग भूल गए तो रोज नया पढ़ाना पड़ता. ऑलरेडी मैं आपको लाइन इंटीग्रल के डेफिनेशन में लिखा है. इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर. देख लो डेफिनेशन अगर है तो. How to integrate this value? 6 is a constant. Integration of x cube is x to the power of 4 by 4. 3 The limits are from 0 to 1. Minus 16 yes sir constant 6 to the power of x to the power of x to the power of 6 the limits are again from 0 to 1. 6 by 4 means 3 by 2. Right? Upper limit is 1 minus lower limit is 0. 16 by 6 means 8 by 3. We are cancelling with the two table. 1 minus lower limit is minus 0 we are getting 3 by 2 minus 8 by 0 3. 3 by 2 by 3 What is the answer? Tell me. जी टाइम लगता सेकंड सर कैलकुलेटर लगा एक सेकंड कैलकुलेटर को तो नहीं होता कॉपी कर लो 7 by 6 is the answer
चल जल्दी जल्दी जल्दी। ओके सर। अभी तक टाइम नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन लिख लिए, यस सर। क्वेश्चन लिख लिए, सर लिख लिए सर। क्वेश्चन इरेज कर दो। इरेज कर दीजिए। फिगर चलो खाली क्वेश्चन इरेज करो। देखो आप टेंशन मत करो, आराम से। सर आप वो स्क्रीन पे से थोड़ा हटा सकते हैं सर? नहीं सर, नहीं दिख रहा स्क्रीन पे वाइट। ठीक है, ओके ना? जल्दी जल्दी करो, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर हो गया सर। देखो सर और एक स्टूडेंट नए ज्वाइन कर रहे सर। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ टॉपिक से। आपको तकलीफ दे रहा हूँ सर? ज्यादा दे रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, हो गया क्या बेकार बता कर रहे हैं। हो गया, क्वेश्चन हो गया, हाँ सर ये हो गया। क्वेश्चन पे लिख दिया ना।
देखिए क्वेश्चन हो गया. Yes, sir. Shall we go solution now? सर इधर पूर्ण के लिमिट 0 to 1 ही चले थे. हाँ, ये क्वेश्चन क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में है. x is equals to t square I cap equals to 2t and z is equals to t cube. मैं बता दूं कैसे सॉल्व करना. आप कर सकते हैं इसको. वही देख. देखिए बता रहा हूँ. First of all, we have to find out which value. Which value we have to find out? F bar. L over C f dot F dr. dr value we have to find out. So this is equals to, F bar. limits are clear already. T varies from 0 to 1. Yes, sir. Okay. F value is there in the question xy. Minus zj I plus cap x minus square k. zj plus x square k cap dot product with dx I cap d by g cap Cap d. plus dz k cap. So we know that I dot I is 1. Okay. Yes, sir. I dot I is Y. 1. Y cap minus. I dot I is 1. So we are left with xy dx. Sir, आप कॉलेज. हाँ, कॉलेज. थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है. कॉलेज में है ना. Plus x square dx. Did you understand this? Yes, sir. X square dz actually. Okay, na? Now we have to use Yes. this given condition. X Because equals why to we are using that given condition? Our limits are in terms of t, so we should convert our question also in terms of t. Okay. X is equals to t square. x t square. Differentiate Y is to dx dt. value is 2t dt. dt. Sir. Pi is equals to 2t. Y equals to 2t. dy equals to t square dt. 3t square dt. Now integral over c f dot dr is equal to t is equal to 0 to 0 1. to 1. Now if you substitute all these values, x is what? Sir, X is t square. What is y? Y is 2t. Okay, now? And here dx value is again 2td. dt. Yes, sir. Okay, Minus minus z value is t cube. Z value is t cube and dy value is 2 dt. So 2 I am writing here, dt here, plus x square. X square बोल तो t power 4. ठीक है ना? dz value is dt square dt. Now here, if you can take constant
कॉमन बोल तो 4 आउटसाइड चले जाता ना। हाँ ठीक है, यस मैं सर, टी डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए 0 to 1 4 आउटसाइड टी स्क्वायर टी पावर 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फोर -2 फिर से बाहर कांस्टेंट बाहर चले आएंगे, 0 1 यस टी पावर 3 टी प्लस माइनस 3 आउटसाइड अगेन 0 to 1 टी पावर 6, टी पावर करेक्ट ना? 4 by 5 टी बाई 5 इंटू टी पावर 5 0 to 1 dt सर। 2/4। देखो हमारे मुनव्वर, आपका कनेक्शन इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है, आपकी आवाज पूरा डिस ब्रेक हो रही, गाड़ी चले सा स्पीड ब्रेकर पे दिखाओ। मेरा इंटरनेट खुला, आवाज आपकी बिल्कुल ब्रेक ब्रेक से आ रही है। इंटरनेट बंद करके खोलना पड़ता है, 1 सेकंड आपको प्लीज। अब इंटरनेट नहीं खोल के पढ़ रहे हैं आप? इंटरनेट खुला हुआ है सर, कई बार हमारा इंटरनेट सता रहा बहुत, तो तो आप मेरे को सता रहे तो खोलना पड़ता, हाँ? बंद करके खोलना पड़ता सर, 1 सेकंड आप। नहीं नहीं, 1 मिनट, बंद करके खोले तो क्लासेस खत्म हो जाती है, रुक जाओ। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो, योर आंसर इज 51/70। चलो मुनव्वर जल्दी लिखो, वो बंद करके खोलने का चार्ट बाद में देखो। यस सर। सर बैकग्राउंड में से बहुत आवाज आ रही है। क्या करूं मैं, बोलो क्या करूं मैं? सॉरी सर। क्या कर सकते हैं, अपने को पढ़ना भी है, स्टाफ रूम भी देखना है, और जंगल में जाके तो नहीं बैठ सकता मैं, किसी की आवाज नहीं आना आपको बोल के। सॉरी। आप लिखो लिखो जल्दी लिखो, तो वो सोचने से इतनी देर में आप 2 क्वेश्चन कर ले सकते। लाइन में लाइन इंटीग्रल समझ में आ गया आपको? यस सर। और एक क्वेश्चन करो या नहीं? यस और नहीं करेंगे, जरूरत कर नहीं ले है, तुम, नको। सरफेस इंटीग्रल चल जाओ। अगर और एक हार्ड वन और एक अलग टाइप का है तो करा दीजिए सर, पूरे सेम टाइप है तो छोड़ दीजिए सर, सरफेस इंटीग्रल में चल जाइए। सेम टाइपिंग रहता, अभी अलग क्या भी नहीं रहता है, इंटीग्रल वैल्यू लिमिट्स निकालना, सब्स्टिट्यूट करना। ओके सर, सरफेस इंटीग्रल में चल जाएंगे सर। सरफेस पार्ट इंटीग्रल हो में गया जाने सर। के लिए थोड़ा बेसिक रूल्स की जरूरत पड़ती, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, फोटो जरा एक बार देख लीजिए, आपको मिली कि नहीं मिली बोल दो। यस सर। ये मिली, देखो फोटो आई। यस सर आई। आप इसमें देखिए, ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखा दिया। एक्चुअली एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं पूछता आपको, पर ये नोट 1 नोट 2 नोट 3 जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है अपने। इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एंड डी एस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डबल इंटीग्रेशन ओवर एफ डॉट एंड डी एस, एक्स वाई प्लेन में है तो कैसा, वाई जेड प्लेन में है तो कैसा, जेड एक्स प्लेन में है तो कैसा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अपन बाद में, अगर डाउट है तो ये पेपर ऑन करके आप देख लेना। सर पेपर ऑन है।
हाँ जब भी जरूरत पड़े जब देख लेना। हाँ अब ये प्रॉब्लम कॉपी कर लो जल्दी से फास्ट। मैं फिर एक क्वेश्चन करता हूँ जिसमें अपने को सरफेस इंटीग्रल के ऊपर कैसा सॉल्व होता है वो देख लीजिए। अच्छा करता हूँ डिटेल में। हाँ चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। हो गया सर ये? हो गया ना? एक एक मिनट ठहरो। आपका कनेक्शन प्रॉब्लम क्या है जरा चेक कर लो। डिस्टर्बेंस आ रहा मेरे को आपकी तरफ से। बंद करके खोलना है क्या है जरा देख लो। हेलो सर। हाँ बोलो। आ रही सर आवाज क्लियर? आ रही है मगर कभी कभी बीच में एकदम ब्रेक हो जा रही है इसलिए बोल। सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ सर, इंटरनेट बहुत सता रहा। फिर मैं क्या करूँ बोलो? आप तो कुछ नहीं कर सकते, मैं क्या करूँ? इसलिए ऑनलाइन क्लास में एज प्रॉब्लम होती सर। ऐसा करेंगे फिर। अब करेंगे प्रॉब्लम नेक्स्ट नहीं करेंगे? करेंगे सर, हो गया सर। चलो ठीक है। ठीक है, the question is evaluate सर सरफेस इंटीग्रल नहीं सर। जी हाँ सरफेस इंटीग्रल डेफिनेशन वो सब मैं लिखा रहूंगा, टाइम नहीं होता। evaluate very very important question है। डबल इंटीग्रेशन और एस एफ डॉट एन कैप। देखिए सिंगल इंटीग्रेशन है तो लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन, डबल इंटीग्रेशन है तो सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो वॉल्यूम इंटीग्रल का क्वेश्चन है। एकदम कंफ्यूजन नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ where f is equals to 18 z I cap minus 12 j cap plus 3y। ठीक है, कल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ऑफलाइन भी क्लास तो भी लेता हूँ। एक बार मेरे को फोन कर लेके देख लीजिए आप, अगर बिजी नहीं हुआ तो मैं ऑफलाइन क्लास 1 घंटा पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट पे। और कुछ प्रॉब्लम हो ठीक रही है। है? सर आपका लास्ट टाइम M2 का क्वेश्चन पेपर है सर आपका? नहीं है वो, आपका नहीं है तो दे। मेरे को नहीं होगा, आपसे पूछा सर। लेकिन नहीं है निसार बोल के सर मैं भी आपसे पूछा। इंस्टीट्यूट में होंगे थोड़े पेपर्स, यहाँ तो फिलहाल नहीं। इंस्टीट्यूट में लास्ट ईयर का पेपर है, सर इंस्टीट्यूट में है, इंस्टीट्यूट पे है। कल देखेंगे सर इंस्टीट्यूट। जी नहीं अच्छी तो बात। अपन शाम को ले सकते सर इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन नहीं रख के। आप ले सकते हैं मगर मैं नहीं ले सकता हूँ बाबा, मेरे कॉलेज से आए तक 8:30 हो रहे रात के। कहीं कुछ सर इतनी पैसा हो जा रही है, अरे अल्लाह काम ऊपर, नहीं वो छोड़ दो, जान दो, फॉरगेट अबाउट। कहीं को बोल के अब नको जाओ, लंबी बात है वो, बहुत बड़ी कहानी है इसकी। सो क्वेश्चन है इंटीग्रल ओवर डबल इंटीग्रेशन और एस एफ डॉट इन ds where f value is this one and s is the surface। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक सरफेस है ऑफ द प्लेन, प्लेन का सरफेस है बोल रहा, और कहाँ पे करो बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ 10 पे करो बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ 10 का मतलब रहता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है। है सर। ठीक है, तो अपन पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस उतारेंगे और ये फिगर को देखेंगे अपन, इन्हें दिख रहा कैसा असल में।
तो मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड चेंज करता हूँ उसका, ग्राफ पेपर में ला लेता हूँ। इसके बाद में आपकी वैल्यूएशन देखिए आप कैसे रहते वैल्यूज। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये आपका हो गया 3D में बता रहे ना अपन इसको, तो ये पार्ट की जरूरत है, इस पार्ट की जरूरत नहीं या। तो ये क्या करेंगे अपन उसको जॉइंट्स करेंगे, प्लेन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बहुत मेहनत हो रही है आपके पीछे, आपका रिजल्ट मेरे को पुश करना, नहीं तो फायदा नहीं है। समझ में आ रहा? जी बहुत मेहनत हो रही है आपके पीछे। बोला इंशाल्लाह सर अच्छा आएगा रिजल्ट। आपकी मेरी मेहनत, आपकी भी मेहनत इंशाल्लाह सर। सपोज दिस इज ए, this is the value of a x axis पे, this is x axis, so this point will be, see how to get the point। यहाँ पे देखिए आप ये प्लेन में देखिए, प्लेन को देखिए, in x axis y0 z0, so what is left of 2x is equals to 12, यस 2x सर, is equals to 12 means x becomes 6 now, यस सर, 6 comma 0 comma 0। In this y axis we are assuming the point b 4 0 comma 4 comma 0, very good, 0 comma 0 4 comma 0। Now this point we are assuming z 0 axis, 0 imaginary axis, that is c, what is that, 0 comma 2 सर। 0 comma 2, यस okay सर, ना? यस So सर, actually we have to find out this value f dot n ds। f तो क्वेश्चन में है, यस ds सर, बोल तो एक फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब xy प्लेन है, दिस टू आर क्लियर, बट हियर n इज नॉट क्लियर। तो इसके लिए अपन क्या करना, थोड़ा सॉल्व करना, n कैप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को प्लेन यूज करना पड़ता है। यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस का फॉर्मूला याद है ना, डेल यस फाई सर, बाई मैग्नीट्यूड डेल फाई। यस सर, व्हाट इज फाई? लेट अस अज्यूम दैट फाई इक्वल्स इज इक्वल्स टू टू 2x z 2x plus 3y plus 6z minus 12 will be taken as the plane equation phi। So now del phi, you know how to find out del phi? del phi equals to I I dou by dou x of phi plus j dou by dou y of phi। ये समझ में आ रहा ना कैसे करूँ मैं? यस सर, डेल की वैल्यूएशन आ रही, यस सर, this is equals to d by dou by dou x of x means we have to differentiate function phi with respect to x। तो with respect to x करे तो कितना बचता, 2i कैप y cap बराबर है प्लस 3j कैप 3 cap plus 16 k cap y 16 6 16 sorry कहाँ sir, से आएगा? So now magnitude of del phi, magnitude of del phi means under root of I coefficient whole square plus j coefficient whole square plus k coefficient whole square करे तो ये पूरा ऐड करके 49 आ रहा, so that is 47। yes 9 7 यहाँ पे yes अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया ये वैल्यू, we are getting 2i equals to 2i plus 3j
3j plus plus k, 6z huh? 6 cap 6k by 7. sir. This is n cap value. Now clearly n cap value we got it. Now ds value 1 by 1 करेंगे. हाँ, Yes sir. ds value in xy plane. अब वो फोटो में आपको जो भेजा है ना, उसमें ds की वैल्यू इन xy प्लेन में कैसा है देखो, ऐसे से क्या देख लो, dx dy by modulus of n cap dot k cap, ऐसे से. Yes sir. यस, वेरी गुड. वो इम्पोर्टेंट पेपर है यार, एग्जाम में भी ले जा सकते हैं आप, पर अपने ओन रिस्क पे लेके जाना. हाँ, एन कैप इज व्हाट, सही में लेके जाते क्या? अरे सर कॉलेज के सर लग जाने कहीं को लग जाएंगे सर. नहीं, अपने ओन रिस्क पे लेके जाओ, गए तो भी लेके वो. नहीं सर याद कर ले तो फॉर्मूलास बस. हाँ, यस, वेरी गुड. ये हो गई एन कैप की वैल्यू. डॉट के क्या, के डॉट के इज 1, आई डॉट के Yes sir. 0. तो यहाँ पे क्या बचता बोलो बाबा, क्या लेफ्ट ऑफ है यहाँ पे? dx by dy. डी एक्स डी वाई बाई खाली 6/7 बचता नहीं. Yes sir. के डॉट के इज 1, तो 6/7 इज लेफ्ट ऑफ. Sir. Yes Right? sir. Yes sir. Right sir. अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर अपन दे सकते. व्हाट इज आवर क्वेश्चन आंसर? डबल इंटीग्रेशन ओवर एस Integration of F f bar dot dot n cap into ds. ds इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, डबल sir, double इंटीग्रेशन integration. ओवर. अब देखिए वहां पे सरफेस रीजन में कन्वर्ट हो रहा, देखिए वो फर्स्ट पॉइंट में देखिए. Yes sir. यस, एफ वैल्यू इज हियर 18, z I cap minus 12 j cap plus 3y k cap dot n cap वैल्यू अपन अभी फाइंड आउट करना बेटे, क्या है बोलिए? 2i cap 2i plus 3j cap plus 6k cap cap by 7. plus 6k cap. ये दूसरे ऑनलाइन क्लासों से थोड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको? हाँ, दिख रहा ना सर? फिर आप बोल रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन बोल रहे हैं आप. इतनी मेहनत हो रही थी आप क्या फर्क है? खाली आप आपके घर में है, मैं कॉलेज में होता है, फर्क है ना. बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको. 7/7 कैंसिल. हाँ सर. 1/6 will be a constant take outside. Double सॉफ्टवेयर से integration. बहुत बड़ा फर्क. वो व्हाइट बोर्ड पे लिखा देते, उससे थोड़ा हैंडराइटिंग भी समझ में नहीं आती सर उससे. अब इसमें वो ये सॉफ्ट है सर ये. yes, I dot I is 1, 18 to the 36, यस सर. 36 z. J dot J is 1, 12 is the 36 again. K dot K is 1, 18. 6 is the 18 plus 18 y plus 18 y, and then Yes, we sir. have left off is dx dy. Already we have taken 6 outside, है ना? This is equals to 1/6 into. Is it possible to take 6 common here? Yes sir. If you are taking 6 common, tell me what is left of. 6z minus 6 minus 6 3 plus y 3y of into dx dy. dy. This 6 along with this 6 cancel. अब अपने एक काम करेंगे, x और y की लिमिट ले लेके ये 2d को, ये 3d को 2d में कन्वर्ट करेंगे. कैसा? यहाँ पे अपने पास 6z की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 6z की वैल्यू z equal 12 to 12 minus 2x minus 3y लिख सकते हैं ऐसा. yes sir. हाँ, तो इट इज बिकम्स डबल इंटीग्रेशन ओवर आर. आई को बोल दो लिमिट अपने को 2 डायमेंशन में लेना है, तो अब 3 वेरिएबल रख के 2 डायमेंशन की लिमिट नहीं ले सकते ना. 12 minus 2x 2x minus 6 6 plus 3y plus 3y. of dx dy. अपन ये
3y को भी लेके वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं, नहीं शुरू की वैल्यू लेके करना डायमेंशन जरूरी में है। देखिए, मैं एक्स और वाई डायमेंशन में लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट बोल रहा हूँ ना उधर। अच्छा, तो फर्स्ट ऑक्टेंट का चेंज फर्स्ट करना होगा, ऑक्टेंट का सेकंड ही काम करना, सेकंड ऑक्टेंट थर्ड ऑक्टेंट ऐसा नहीं रहता क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, अपना पूरा इंजीनियरिंग सिलेबस में कहीं भी सेकंड थर्ड ऑक्टेंट में है नहीं। सर। फर्स्ट ऑक्टेंट में करना, अगर कुछ भी मेंशन भी नहीं करा तो भी डिफॉल्ट भी फर्स्ट अपन फर्स्ट ऑक्टेंट में करते हैं। एक्स वाई प्लेन में आसान रहता काम dx dy, ठीक है ना। अपना काम ये है कि आप इसके लिमिट्स कैसा निकालें। इसके लिए क्या करेंगे, ये फिगर को 2D में देखनी है। ये फिगर को 2D में ड्रॉ करता हूँ, देखो फिर से। बस मैं ये एक काम कर रहा हूँ, उल्टा करके 2D में उतार रहा हूँ बस, ठीक है ना। यस सर। देखिए ना 2D में आ गया। अब 2D का जो वैल्यूज है अपनी, ये तो आपको बहुत आसानी से अब समझ में आ जाता। ये क्या है, ये ओरिजिन है ना, 0,0 है, 2D में देख रहे हैं अपन इसको, ठीक यस है। सर। ये वाई एक्सिस हो गया अपना, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ओके, इफ यू वांट टू राइट द पॉइंट, it should be 6,0 only, and this is what 0,4, 0,4 0,4 is equal to 0. Equation of y-axis, this is y is equal to 0, 0 equation of x-axis. So we have to take the limits. ये region आपका R है, ये पूरा। So when we are taking the limits of x on x-axis, for the limits of y we have to draw a strip which is parallel to y-axis. 0। तो अच्छा अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस सर। लिमिट्स लिखना है x के और y के। x के तो 0 to 6 है, इक्वल्स अब यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं लिमिट्स टू ऑफ 0 to 6, x, y equals to 0 to 4। x is equal यस to सर। y is equal to 0 to 4 होते हैं। वेरी गुड, तक क्लियर बताने के बाद भी कंफ्यूज में है। x is equal to 0 to x is equal to 6, the limits of y, स्ट्रिप की लोअर लिमिट y is equal to 0 है, स्ट्रिप की अपर लिमिट, ये इक्वेशन क्या है एक्चुअली, ये इक्वेशन क्या है एक्चुअली, 2x प्लस 3y 2x इज इक्वल टू 12 है खाली, है ना, है कि नहीं है। यस सर। जेड एक्सिस नहीं है ना उसमें। यस इसको अगर नहीं अपन है सर। ऑफ y लिखे तो क्या होती है भाई, 12 y equals 2x 12। 3 ना, 12 यस minus 2x by 3, so y is equals to 12 minus 2x by 3। अब यहाँ पे लिमिट से लगा दीजिए, लिमिट्स लगा के इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और आप जल्दी से अगर लिख लिए तो मैं इधर का पार्ट इरेज करके क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। ये हो गया तो बोलो, जल्दी करो, चलो लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया तो बोलो। सर आप 0 to 4 कैसा 0 to 4 कैसे ले देंगे, एक्स के लिमिट्स को एक्स एक्सिस पे दो, वाई के लिमिट्स के लिए स्टेप बनाते। अपने को रीजन की लिमिट होना है, खाली एक्स और वाई की लिमिट होना है। रीजन? फिर रीजन कहाँ है, एक्स और वाई के बीच में है। समझे? यस सर। यस हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, y के लिमिट्स को y एक्सिस पे लेके 0 to 4 लेके y is equal to 0 to y is equal to 4, x के लिए फिर स्टेप बनाना पड़ता, फिर ये कर्व को x में कन्वर्ट करना पड़ता। इसकी लोअर लिमिट x is equal to 0, अपर लिमिट x is equal to 12 minus 3y by 2 बोल के आती,
फिर उससे सॉल्व करें तो भी आपको सेम आंसर ही चाहता। चले चले, कम ऑन, मेक इट फास्ट। दिस पार्ट इज ओवर, लेफ्ट साइड पार्ट इज ओवर। नहीं सर, लिख रहा हूँ। जल्दी करो पापा। कल एक बार मेरे को फोन करके देख लीजिए आप, अगर अल्लाह चाहे तो मैं आपकी कल क्लास एक ऑफलाइन 1 घंटा मैनेज करता हूँ कैसा भी, अल्लाह चाहे। सर सुबह में, सर नहीं ये सुबह में, सुबह बोलता हूँ आफ्टर 11-12 ऐसा। संडे है ना कल? यस सर। कल भी हमारा कॉलेज वर्किंग डे है। यस सर, लेफ्ट साइड का पार्ट। Okay, right. Let me finish the question. Okay. उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले लेके भी बाद में भी आप कॉपी कर ले सकते हैं, मगर मेरे को तो सोल्यूशन एक्सप्लेन करना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आता। मेरे पास फोटोज भी भिजा सकता हूँ मगर नहीं समझ में आता, समझाना जरूरी है, इंटीग्रेशन है। ठीक है ना? Shall we proceed now? यस सर, प्रोसीड सर। Yes. So now the limits I am writing. We are finding the value of double integration over s, double integration over s. F dot dn value we are finding. F dot dn ds value. कॉम्प्लिकेटेड लिमिट लेना बोले तो सर अपन पहले y की लिमिट लेके करना। टाइप करते भाई, ट्राई को करते भाई, ऐसा करना चाहते हैं आप वो आप खुद ट्राई कर लो, मैं तो नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा। This is equal to 0 to 6. Y is y equal to to 0 to 12 minus 12 minus 2x by 3. अब कर लेते बोल तो मैं रुक जाता हूँ, क्या बोलते? नहीं सर, नहीं सर। 6 minus 2x dx into dy. y। dx dy. So when we are integrating, the complicated limit is y, so we differentiate, sorry, integrate with respect to y first of all. Okay, so that is equal to x varies from 0 to 6. अब इसको in terms of y, with respect to y we are integrating. What is the integration of Yes. 6? It should be 6y minus 2x का integration 2xy with respect to y, 2xy। correct? ठीक है ना? And the limits Yes, sir. are y is equal to 0 to to 0 minus 12 2x into dx। by 3 into dx. So wherever y is there, we have to substitute upper limit, that is say 0 to 6. 6 into upper limit will be 12 minus 2x by 3 minus 2x into लोअर लिमिट तो 0 हो जाती, देखिए लोअर sir. लिमिट में क्या भी आंसर नहीं आता, खाली अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। 12 minus 2x by 3. This we have dx also. So 6 ones are, sorry, not 6, 3 ones are, 3 twos are, it must be cancelled. ये तो cancel नहीं होता. This is 0 0 to, if you multiply, what will happen here? 12 to the 24 24 minus minus 4 4x minus minus 4x. 12 to the plus 4x। 4x by 3. Yes, Huh? sir. Minus Yes, sir. 12 to the 24x by 3 minus into minus plus 4x square by 3 Yes, sir. into
into dx. dx. 3 1s are 3 8s are cancel. अब मैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहा हूँ. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 24x? लिमिट्स आर 0 to 6. 0 बराबर to करो. 6. Yes. Yes sir. Minus. 4/2 हाँ, x वेरी गुड. square. मैं समझा, आपको नहीं समझ में आता मगर आपको समझ में आ रहा. 0 to 6 प्लस 8/3 कांस्टेंट है ना. 8/3 Yes sir. फिर x का x²/2 मतलब 3 1 3 8 ऑलरेडी कैंसिल हो गया ना. x² 2 आता ना. 8/2 into x square. 0 to 6 plus 4/3 4 is a 9 sir. x cube 2 0 to. dx. ठीक है ना. तो इसका आंसर कैलकुलेटर रेडी रखो आप. मैं बोल रहा हूँ कैसे करना है. दिस इज इक्वल टू इट्स 24 into 6 4/2 is 2. This 6 square is 36. ठीक, मैं एक काम करेंगे हमारे बराबर इधर लिखेंगे. हाँ? नहीं है ये क्लियर नहीं दिख रहा आपको. दिख रहा है? नहीं, इधर बाजू लिख तो एक ही स्टेप है. थोड़ा अलग कलर से लिख लेता हूँ. This is 24 into 6. This is 4/2 is 2 into 6 square is 36. 8/2 is 4 again. 8/2 is 4. 6 square is 36. And 4/9. 4/9 into 6 power 3. 6 power 3 is 216. 6 is 36. 36 is 216. ये पूरा कैलकुलेट करके मेरे को बोल सकता है. कैलकुलेटर है आपके हाथ में? आपको वेरीफाई भी हुआ था मैं साइन करूँ कि नहीं सर करूँ. है सर. बोलो आंसर. सर 4/9 into क्या है सर? 24 into 4 ये हो गया आपका 36 2 जा. नहीं सर, लास्ट वाला 4/9. 4/9 into 216. सर आंसर देता 312. 24 आता जी आंसर. 24 आ रहा है आंसर. 24. 24. Yeah, answer is 24. यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई. मैं प्लस माइनस गलती तो गलत लिखा. आप जरा एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए. ये स्मॉल ये माइनस आना यहाँ पे. यहाँ पे माइनस आना और ये भी माइनस आना. अब चेक करो आंसर. आगे 24 आगे यस सर. आ गया ना. चलिए कॉपी स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जरा जल्दी बाहर जाना है. ओके सर, हो गया सर. स्क्रीनशॉट ले एक लो. मैं सेकंड सर. एंड करता हूँ. जल्दी करो. ले लिया सर स्क्रीनशॉट. ओके थैंक यू. थैंक यू सर.